Then we'll proceed. And with our other book now we go to, which is Power of the Subconscious Mind. And we are reading the chapter on happiness. Yes, Vijayji, Yes. start Good reading. morning. Good morning. Very good morning. So Thank happy you. to have you read this chapter. Thank you. His inner speech held back his promotion. One day, a salesman came to see me and described his difficulties in working with the sales manager of his organization. He had been with the company 10 years and had received no promotion or recognition of any kind. He showed me his sales figure, which were greater proportionately than the other men in in the territory. He said that the sales manager did not like him and did not like him, that he was unjustly treated, and that at uh, conferences, the manager was rude to him and at times ridiculed his suggestions. I explained that undoubtedly the cause was to a great degree within himself, and that his concept and belief about his superior bore witness to the reaction of this man. The measure were mere shall be measured to us again. His mental measure or concept of the sales manager was that he was meant and cantankerous. He was filled with bitterness and hostility towards the executive. On his way to work, he conducted a vigorous conversation with himself, filled with criticism, mental argument, recrimination, and denunciation of his sales manager. What he gave out mentally, he was inevitably bound to get back. This sales manager realized that his inner speech was highly destructive because of the intensity and force of his silence, thoughts, and emotions, and personally conducted mental condemnation and vilification of the sales manager entered into his own subconscious mind. This brought about the negative response from his boss, as well as creating many other personal, physical, and emotional disorders. He began to pray frequently as follows: I am the only thinker of my universe. I am responsible for what I think about my boss. My sales manager is not responsible for the way I think about him. I refuse to give power to any person, place, or thing to annoy me or disturb me. I wish health, success, peace of mind, and happiness for my boss. I sincerely wish him well, and I know he is divinely guided in all his ways. He repeated this prayer out loud, slowly, quietly, and feelingly, knowing that his mind is like a garden and that whatever he plants in the garden will come forth like seed after their kind. I also taught him to practice mental imagery prior to sleep in his way. In this way, he imagined that the sales manager was congratulating him on his fine work, on his zeal and enthusiasm, and on his wonderful response from customers. He felt the reality of all this, felt his felt his handshake, heard the tone of his voice, and saw him smile. He made a real mental movie, dramatizing it to the best of his ability. Night after night, he conducted this mental movie, knowing that his subconscious mind was the receptive plate on which
his conscious imagery would be impressed. Gradually, by a process of what may be termed mental and spiritual osmosis, the impression was made on his subconscious mind and the expression automatically came forth. The sales manager subsequently called him up to San Francisco, congratulated him, and gave him a new assignment as a division manager over 100 men with a big increase in salary. He changed his concept and estimate of his boss, and the latter responded accordingly. या कितना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है ये इस पर्सन का। ऐसे बहुत सारे लोग रेजोनेट करेंगे कि हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन मेहनत के हिसाब से हमको सफलता नहीं मिल रही है और पैसे नहीं मिल रहे और रिकग्निशन नहीं मिल रहा। So many people feel that I'm very capable, but they are not getting the recognition, right? Or they're not getting the money equivalent to how hard they work. सो ये उस पर्सन के बारे में है दैट ये जो इंसान था इसको हमेशा लगता था दैट मेरा बॉस मुझको हमेशा क्रिटिसाइज करता है और मैं इतनी मेहनत करता हूँ। जेन्युइनली उसके सेल्स फिगर बहुत अच्छे होते थे बट उसको कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिलता था अपने बॉसेस का। बॉस हमेशा उसे मीटिंग्स में सबके सामने रिडिक्यूल करता था तो उसको बहुत बुरा लगता था। और जब भी वो ऑफिस की तरफ जाता था तो इसमें लिखा हुआ व्हेन ही वुड गो इन द मॉर्निंग ऑन हिज वे, तो वो पूरे टाइम बहुत ज्यादा उसमें रहता था बिकॉज वो एंजॉय नहीं करता था ना अपना काम, बिकॉज उसको हमेशा बुराई मिलती थी तो एंजॉय करता नहीं था अपना काम। तो उसको वो पूरा यही सोचता हुआ जाता था फिर से वो ऐसे बोलेगा फिर से ऐसे करेगा, उसका बिहेवियर कितना एरोगेंट है, कितना कैनकेंटरस है, कितना मीन है वो इंसान, है ना। ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं इसमें क्योंकि वो ऐसे ही सोचता था दैट ही इज दिस ही इज दैट, मेरा बॉस ऐसा है मेरा बॉस वैसा है, उसके लिए तो कितनी भी मेहनत कर लो कोई काम करने का वो नहीं है, पैसे भी नहीं बढ़ते, मेरा प्रमोशन भी नहीं होता, मेरी तारीफ भी नहीं करता, मेरे काम भी एक्नॉलेज नहीं करता। और रोज ये बोलते बोलते सोचते सोचते वो ऑफिस पहुंचता था बिकॉज ये बार बार ये सोचता था उसके साथ वैसा ही हुआ, है ना। तो जो उसकी रियलिटी थी कि बॉस के साथ उसकी बनती नहीं थी, बॉस उसको अप्रिशिएट नहीं करते थे, बॉस उसको कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, उसको पैसे नहीं देते थे, वो खुद ही क्रिएट कर रहा था बिकॉज योर थॉट्स आर योर प्रेयर्स, राइट। वी नो वेरी वेरी क्लियरली दैट आपके जो सोच विचार होती है और आपके शब्द होते हैं ये आपके प्रेयर्स होते हैं। तो अगर मैंने बोला दैट मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, ये आपकी प्रेयर है, तो अब वो तबीयत खराब हो जाएगी बिकॉज भगवान एकदम से सुन लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक नहीं होता है कि डज शी मीन इट और डज ही मीन इट, ये सही है गलत है सत्य है झूठ है, ये सब नहीं होता है। जो चीज आप सोचोगे वो हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं अपने थॉट्स एंड वर्ड्स को बहुत चूज करना चाहिए, है ना, ध्यान से चूज करना चाहिए। इमोशनलाइज करके नहीं बोलो गलत चीज कभी भी, जो चीज नहीं चाहिए उसको मत सोचो, कैंसिल आउट कर दो उसको, डिलीट, कंट्रोल ऑल डिलीट फटाफट, और उसकी जगह पे दूसरी चीज प्लान करो। तो अब ये वाला जो इंसान था बिकॉज ये बोलता था कि मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे पैसे नहीं मिलते, मेरे हमेशा मुझे रिडिक्यूल करते हैं सबके सामने, वो बहुत मीन है उसका बिहेवियर। तो वो मीन बिहेवियर एंड कैनकैंटरस बिहेवियर जो इसमें लिखा हुआ है कि दूसरों की खिल्ली उड़ाना, ऐसे मजाक करना, तो ये बॉस के बारे में वो बोलता था। तो बिकॉज ये बोलता था तो वो वही अट्रैक्ट करता था। अगर हम बोलेंगे कि मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो वो नहीं पढ़ाई करेंगे, वो आपने क्रिएट किया ये बोल बोल के कि दे आर नॉट सिंसियर, दे डोंट लिसन टू मी एंड दे डोंट स्टडी एंड दे स्लीप लेट, दे स्लीप लेट, दे स्लीप लेट, दे स्लीप लेट, दे स्लीप लेट। ओके, सो वी हैव क्रिएटेड इट। वो पहले से करते थे, सिचुएशन अब बैक टू वर्स हो जाएगी। तो आपको क्या बोलना है, माई चिल्ड्रन हैव अ वेरी गुड ईटिंग एंड लाइफ स्टाइल हैबिट्स एंड दे गो टू स्लीप ऑर्गेनिकली बाय 10:30 11 PM, है ना। आप ये लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, आप देखोगे वैसी हो जाएगी। तो इस पर्सन ने अपने बॉस का बिहेवियर क्रिएट किया था अपनी सेल्फ टॉक से, क्योंकि वो लगातार जो बोलता था वो उसके साथ होता था, है ना। जैसे बोलते वैसे ही हो जाता है ना। ये चीज हमने साइंटिफिकली पढ़ी है इतनी सारी किताबों में, चाहे वो टेलीसाइकिक हो, चाहे वो ब्रेकिंग द हैबिट हो, सब में। तो इस तरह से इसका बॉस वैसा ही था, है ना, क्रूकेड इंसान, क्योंकि ये उस बॉस के बारे में ऐसे सोचता था। फिर फाइनली इसको सलाह मिली, इसने अपनी सेल्फ टॉक चेंज की।
अब इसने अपने बॉस के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोलना शुरू किया रोज। अब वो सिस्टमेटाइज वे में करना होता है ये सारी चीजें। हाउ टू प्रे, हाउ टू ही बिगैन टू प्रे, राइट? सो ही बिगैन टू प्रे, आई एम द ओनली थिंकर इन माई यूनिवर्स, यानी कि मेरे दुनिया में जो भी है वो सब मेरे कारण है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई थिंक अबाउट माई बॉस। तो उसने कहा कि मेरा बॉस जैसा भी है मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। मेरा सेल्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द वे आई थिंक अबाउट हिम, है ना? तो पहले तो उसने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने ऊपर और उसने कहा मेरे ही कारण ये है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। नाउ देन ही सेड आई रिफ्यूज टू गिव पावर टू एनी पर्सन प्लेस और थिंग टू अनॉय मी और डिस्टर्ब मी, दैट मैं किसी भी चीज को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता अपने अपनी सिचुएशंस के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज से आई विश हिम, मतलब वो अपने बॉस के बारे में बोलता था, आई विश हिम हेल्थ, सक्सेस, पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस फॉर माई बॉस, है ना? ये चार शब्द उनके लिए, हेल्थ, उनकी सक्सेस, उनका पीस ऑफ माइंड और उनकी हैप्पीनेस, उसने विश करना शुरू किया। और बाद में बोला आई सिंसियरली विश हिम वेल, मैं दिल से उनकी खुशी चाहता हूँ। एंड आई नो ही इज डिवाइनली गाइडेड इन ऑल हिज वेज, और भगवान की पावर उनके अंदर से फ्लो रही है। ये उसने रोज सुबह सुबह बोलना शुरू किया, है ना? और इसके, और नॉट जस्ट दैट, एक और प्रैक्टिस की जो मैंने आगे हाईलाइट की है, उसने रात को सोने के पहले इमेजिनेशन करना शुरू किया, इमेजेस में उसने देखना शुरू किया। और वो इमेजिन ये करता था कि उसका बॉस उसको कंग्रेचुलेशन कर रहा है, और हैंडशेक फील करता था, उनका टच ऑफ द हैंड जो होता है ना जब हैंडशेक करते हैं, वो फील करता था। और अपने बॉस की आवाज अपने कान में सुनता था जो बोलते थे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वेरी फाइन वर्क, है ना, इस तरह करके। सो वो रियलिटी फील करता था, हैंडशेक का टच फील करता था, उनकी आवाज अपने कानों में महसूस करता था और उनके चेहरे पे स्माइल देखता था। तो अपने सारे सेंसेस यूज कर रहा था, अपनी आंखें, अपना मुंह, फील, टच, सेंस, एवरीथिंग, राइट? और ये वो लगातार करता रहा और एग्जैक्टली उसने यही क्रिएट किया अपनी जिंदगी में। फाइनली जब कुछ दिनों तक उसने ये वाला मेंटल मूवी मेथड किया, तो उसको अब लाइक फाइनली उसके बॉस ने उसको कंग्रेचुलेट किया, उसको बुलाया सैन फ्रांसिस्को, है ना, वहां पे, क्योंकि बॉस अलग रहता था दूसरे ऑफिस में। तो उसने उसको बुलाया, इस पर्सन को, सैन फ्रांसिस्को, उसको कंग्रेचुलेट किया वैसे ही हैंडशेक करके, और उसका प्रमोशन किया, डिवीजन सेल्स मैनेजर बना दिया। जबकि 100 लोग कंटेंडर्स थे उस पोजीशन के लिए, लेकिन वो पोजीशन इस पर्सन को मिली विद अ बिग इंक्रीज इन सैलरी। ओके, सो इस तरह से विक्ट्री होती है। इसीलिए कोई भी इंसान, कोई भी एक्सपीरियंस अगर हमारे एनवायरमेंट में नेगेटिव होता है, पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बिकॉज एवरीथिंग इज स्टेमिंग आउट ऑफ योर लाइफ, नथिंग इज आउट देयर, एवरीथिंग इज विद इन। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू रियलाइज, सब कुछ मेरे कारण है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर जो है वो मेरा अपना क्रिएशन है और मेरा अपना परसेप्शन है। तो जैसे ही मैं अपने क्रिएशन और अपने परसेप्शन की मालिक हूँ, तो मैं उसको चेंज कर सकती हूँ, है ना? किसी और को पावर नहीं देनी चाहिए। आपके पास इतना बड़ा अवचेतन मन है जिसकी पावर 96% है। अगर हम उसको यूज नहीं कर पाए तो ह्यूमन लाइफ लीड करने का फायदा ही क्या है? ऐसे ही थोड़ी भगवान ने 96% सबकॉन्शियस माइंड को दिया है। He's given it only so that we can use that and create the life that we desire, a beautiful life, and become a better human being, right? So आगे बढ़ते हैं। Becoming emotionally mature. What the other person says or does cannot really annoy or irritate you except you permit him to disturb you. The only way he can annoy you is through your own thoughts. Thought. For example, if you get angry, you have to go through 4 stages in your mind. You begin to think about what he said. You decide to get angry and generate an emotion of rage. Then you decide to act. Perhaps you talk back and react in kind. You see that the thought, emotion, reaction, and action all take place in your mind. When you become emotionally mature, you do not respond negatively to the criticism and resentment of others. To do so would mean that you had descended to that state of low mental vibration and become one with the negative atmosphere of the other. Identify yourself with your aim in life and do not permit any person, place, or thing to deflect you from
your inner sense of peace, tranquility, and radiant health. या मतलब अपने आप को इतना पक्का बना लो कि कोई आपके इमोशंस को ट्रबल नहीं कर पाए। देखो, एज अ ह्यूमन बीइंग, सपोज यू हैव समबडी हैज डन समथिंग यू डिड नॉट लाइक, है ना, अगर किसी ने भी कोई भी ऐसा काम किया कि आपको अच्छा नहीं लगा, उसको अपने आप को डिस्टर्ब मत करने दो। इमोशनली एज अ ह्यूमन यू विल फील बैड अबाउट इट फॉर अ सेकेंड, ठीक है, कुछ देर तक, लेकिन अपने आप को रेजरेक्ट करो। हमारे पास पावर ऑफ वर्ड्स हैं और पावर ऑफ थॉट्स हैं। तो अगर अगर आपकी सपोज, हाउ डू आई टेल यू, सो अगर जैसे आपकी डोमेस्टिक हेल्पर है या कोई है, ड्राइवर नहीं आया और आपको ऑफिस जाना था, या कोई भी ऐसी चीज हो गई, मे बी कार में कुछ ब्रेक डाउन हो गया या कोई ऐसा, तो इमोशंस पे मत नहीं लेना होता है उसको। ये सब जिंदगी की चीजें होती है। इट रियली डजेंट मैटर कि अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है तो आप कैब करके चुपचाप चले जाओ, राइट, एंड से थैंक यू टू द कार। एनर्जी अगर नेगेटिव हुई तो हमारे बाकी एरियाज में भी नेगेटिविटी शुरू हो जाएगी, वो स्पाइरल डाउन करने लग जाते हैं। सो एवरीथिंग इन लाइफ हैपेंस फॉर अ गुड रीजन, फॉर द हायर गुड, जो हमको ह्यूमन बीइंग की तरह दिखता नहीं है। there's something good to make us realize or to make us learn or to give us some experience जिससे हमको पता लगे कैसे करना है, और a test that are we really deserving of that. So इसीलिए अपने आप को इमोशनली वल्नरेबल बना के घूमना, कि कोई कुछ भी कर दे और आप बैठ के रो रहे हो, वो कर दे बैठ के रो रहे हो, दैट मीन्स आपको अपनी पावर पता ही नहीं है अभी। अपनी पावर को अपने हाथों में लो, राइट। सो इसीलिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी बोल रहे हैं कि अगर कोई कैसे भी बिहेव करता है तो सबसे पहले हम सोचेंगे उसने क्या बोला। कहते हैं 4 फेजेस में हम एक्ट करते हैं। पहले सोचते हैं ये क्या हुआ, उसके बाद इमोशनली हम फील करते हैं कि ओ मुझे बड़ा बुरा लग रहा है उसने ऐसे किया, है ना, फिर रोते धोते हैं। फिर थर्ड रिएक्शन होगा हमारा, दैट हम रिटॉर्ट करेंगे, उसको भी कहेंगे अभी मैं दिखाता है, अभी दिखाते हैं। फिर उसके अगेंस्ट कुछ करेंगे, हाउ डेयर यू, और वी विल पास अ नास्टी रिमार्क, और वी विल टाइप अ टेक्स्ट अगर आप साथ में नहीं हो, उल्टा सीधा। और फिर उसको लेके ब्रू करके बैठे रहेंगे, उसी में ड्वेल करेंगे और रूमिनेट करेंगे, है ना। तो ये 4 फेजेस में हमारा रिएक्शन होता है। तो कहते हैं ये साइन है कि आप एक बहुत वीक इंसान हो। सो इसीलिए अपनी पावर, अपनी चॉइस ऑफ वर्ड्स आपके पास है ना। अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है, व्हाट यू हैव टू स्पीक इज लव, पीस, हार्मनी, गुडविल, हैप्पीनेस, ओके, और जस्ट से थैंक यू, आई लव यू। दिल नहीं करेगा बोलने का, बिकॉज उस वक्त थैंक यू, आई लव यू जैसे कोई सीन ही नहीं लग रहा है, बिकॉज यू आर फीलिंग सो बैड अबाउट समथिंग। लेकिन चॉइस ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स में पावर होती है आपकी किस्मत बदलने की। और करंट सिचुएशन जिसके कारण आप नेगेटिव फील कर रहे हो, वो सिचुएशन आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी बहुत अमेजिंग तरीके से। रोंडा बर्न होती तो बोलती मैजिकली, इट विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म, है ना। सो वो सिचुएशन पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इन द बेस्ट, फॉर द बेस्ट आउटकम, अगर आपने उसी वक्त अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स और अपने थॉट्स को कंट्रोल रखा और ब्लेम गेम में नहीं रहे। अगर हम अपनी पावर समझ लेते हैं तो हम किसी भी इंसान को ब्लेम नहीं करते हैं कि उसने ऐसे किया और फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, बिकॉज ऑफ दैट पर्सन दिस हैपेंड इन माय लाइफ। नो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। आपने उस पर्सन के लिए नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट की थी, तो वो घूम के वापस आई है कैटापुल्ट की तरह। it is as simple as that. So there is nothing out there. That's why refrain from blame and criticism in life for anything, right? So this is what we need to realize. You are the power of God and nothing less, not even less by a percent than that. So you can create your life your way. Doesn't matter. हाँ, कुछ पैटर्न्स आपको अपनी जिंदगी में दिखेंगे, है ना, दिस लाइफ कर्मा, थॉट प्रोसेसेस, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा जो फ्लॉपी है, जो डिस्क है, उसमें बहुत स्टोर्ड है मेमोरी, इमेजेस पिछले जन्मों से, रिश्तेदारों का कंटेंट जो आपने शायद कंज्यूम किया है, किसी ने आपको बड़ी रो धो के कोई कहानी सुनाई है, वो आपने एब्जॉर्ब कर ली क्योंकि आप इमोशनल पर्सन हो। तो वो सारा एक्शन रिप्ले होगा आपकी जिंदगी में। एंड लेकिन कोई बात नहीं, हो जो हो गया वो हो गया। हमारे पास ये पावर है ना उसको ट्रांसफॉर्म करने की। सो नाउ थ्रू आवर चॉइस ऑफ वर्ड्स, थ्रू आवर चॉइस ऑफ थॉट्स, वी विल क्रिएट व्हाट वी वांट। व्हाट हैज बीन क्रिएटेड इन आवर लाइफ, ये तो आपका प्रेजेंट है, ये तो पास्ट और प्रेजेंट है। लेकिन प्रेजेंट में आपके पास पावर भी है टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल न्यू फ्यूचर।
of your liking, right? And this is the kind of power, and it is a law. So it's not even that आपकी पावर है या ये लॉ है, ये एग्जिबिट होगी ही होगी जिंदगी में। ऐसा नहीं होता कि आप जो थॉट सोच रहे हो वो क्रिएट ना हो। अगर आप लगातार किसी चीज को बार 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 सोच रहे हो, आप उसको बहुत जल्दी होता हुआ देखोगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत फ्लूइड होता है। वो आपकी करंट चीज को पिक कर लेगा, और जैसे ही वो करंट चीज को पिक करता है, पास डिटैच हो जाती है ऑटोमेटिकली, राइट? सो यू हैव क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल न्यू फ्यूचर। इसके बारे में हमने पूरी ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ पढ़ी है। सो ब्रेक दैट हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, वो किताब ऐसी थोड़ी पढ़ी थी हमने। ब्रेक दैट हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। इफ यू सी आई एम लाइक दिस ओनली, आई एम लाइक दैट ओनली, चेंज योरसेल्फ। You don't have to be that person because it did not work for you. Did it work for you? It gave you problems, right? So don't be that person anymore. Change yourself. Change yourself to be more empowered, to be more successful, to be rich, wealthy, compassionate, empathetic, and to rule. Be a star, right? So first you have to be a star in your own life. So by adopting certain methods, tools, using the choice of words, the choice of thoughts that you have, you create them, because they will definitely become a true reality. और 3D में energy को E is equal to mc square, ये mathematical formula है ना? So E is equal to energy is equal to mc square. mc square का मतलब होता है matter, matter मतलब solid. तो अभी एनर्जी लेवल पे है, आपकी सोच में है, आपकी सोच है, आपकी सोच है कि आपको यूरोप घूमने जाना है एज एन एग्जाम्पल। तो अभी सोच है ई इज इक्वल टू mc स्क्वायर, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। mc स्क्वायर मीन्स मैटर। अब आप कर रहे हो, आप यूरोप चले गए, अब कैसे हुआ क्या हुआ पता नहीं, है ना? आपको घर खरीदना था, आपको शादी करनी थी, आपको पार्टनर चाहिए, आपको बहुत प्यार चाहिए, आपको रिलेशनशिप बहुत सुंदर करनी है। अभी एनर्जेटिक लेवल में जब तक वो थॉट्स में है तब तक वो ई है एनर्जेटिक लेवल पे। mc स्क्वायर वो बन जाएगा ना जब लगातार आप, ये तो फॉर्मूला है, इसको आप चेंज तो कर नहीं सकते, है ना? चाहे हम बोले कि आई डोंट बिलीव इन दैट, आई डोंट बिलीव इन दैट, आई बिलीव इन दिस थिंग, it really doesn't matter whether you believe or not. All our life we have been thinking our thoughts and creating the life that we have right now. So now just get deliberate about it, है ना? अब आप कॉन्शियसली सोचना शुरू कर दो, क्योंकि जिंदगी क्रिएट करना आपके हाथ में। और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सब वो जिंदगी जियो जो जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है, जिसको आपको लगे कि ये जीवन तो मेरा बस सफल हो गया, दिस इज व्हाट आई डिड एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू डू। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप टेलिंग योरसेल्फ, दिस हैज टू बी योर सेल्फ टॉक, दैट I do everything that I want to do. I receive everything that I want to receive. I feel everything the way I want to feel. This is a very fulfilled life. I'm so happy about it. So ये thought होना चाहिए कि फटाफट फटाफट क्रिएट करो, उसके लिए अपने डिजायर लिस्ट रोज पढ़ा करो एंड ऑल ऑफ दैट। सो यही डॉक्टर मर्फी इसमें समझा रहे हैं कि एनवायरमेंट के पपेट अगर आप हो गए ना, सारा गेम खत्म हो जाएगा, तो वो मत हो, ठीक है? एंड थैंक यू विजय जी, दिस इज ऑल विल बी रीडिंग टुडे। थैंक यू सो मच, वी ऑलवेज लव योर रीडिंग। थैंक यू।